Good morning, students. So today we begin with the second unit, research design. In the last week, we have completed the first unit. I hope you are able to see the slide, right? So what is the meaning and purpose of research design? So research design is the blueprint of research. You might have seen blueprint. Nowadays, blueprints are not available. Before you start constructing a building, the contractors, the engineers prepare a sketch. Usually it is in blue color. In olden times, nowadays with AutoCAD, computerized printing, it is black and white. Otherwise, blueprint is the sketch. So before you start any research, you require a blueprint, synopsis, a proposal, a detailed plan. So that is research design. It outlines how the research will be carried out, where it will be carried out, why it is to be done, what are the objectives, what is the sampling, how the data will be collected, how it will be analyzed, what is the chapter plan. All these things will be in the blueprint. Now, this entire blueprint, the research design, has been divided into 5 separate sections and it is given to you as assignment. So you have completed the first part of the research proposal development as part of the first assignment. You have written, you have selected a topic, you have written this rationale, why you have selected, you have explained the significance to social work. So this is the first part of the research design. Now the second part, third part, fourth part, all the part will be given to you subsequent research assignment. So I will explain to you after 1 or 2 classes what is the second assignment, research assignment. That will be second part of the research design. But this is very important for you. By the completion of these lectures, you should be able to prepare the synopsis, prepare a research plan. So that is research design. It addresses itself to certain key issues involved in carrying out the research, such as where, when, how, and why the information is collected. Research design is a detailed plan of how the goals of research will be achieved. Now, according to Ahuja's book, page number 121, you can find the purpose of research design. To provide a blueprint of research, it limits boundaries of the research, enables investigation to anticipate what problems will be there. It offers a systematic approach to the research. It encourages coordination. It helps in the use of resources effectively. It enables the researchers to control the research operation most effectively. Means research plan is very important. It gives the scope, how the research will be conducted. Now there are different types of research design. That's what I'm going to explain to you. As per your syllabus, there are 7 types of research. Actually, these are the different type of research as well as research design. डिजाइन चेंज होगा तो रिसर्च भी चेंज होता है. जैसे डिजाइन है वैसे रिसर्च होगा. So there can be 7 type of research, or we can say 7 type of research design. So आपको पहले पता होना चाहिए आप कौन सा टाइप
what is going to be your research design? Generally क्या होता है, आपका सीनियर्स MSW लेवल में ज्यादातर सेकंड टाइप ऑफ रिसर्च होता है, डिजाइन होता है डिस्क्रिप्टिव सिचुएशनल एनालिसिस, हम उसको बोलते हैं वर्णनात्मक अभ्यास। वो सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि मास्टर लेवल में आपको एक सिचुएशन का एनालाइज करना है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल, द सिचुएशन ऑफ विमेन, सिचुएशन ऑफ children, situation of farmers in a particular village. This is called descriptive, the simplest study. बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको सिर्फ वर्णनात्मक डिस्क्राइब करना है. Okay, that is the second type. Actually, the first one is the simplest, the fact findings research. This is actually survey design, exploratory, searching for fact. लोगों का ओपिनियन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करने वाले हैं, सच क्या है, सच ढूंढने का अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन. ओके, सेकंड वन इज वर्णनात्मक. मैंने आपको बताया सिचुएशन क्या है, महिलाओं का सिचुएशन क्या है, बच्चों का सिचुएशन, कोविड सिचुएशन क्या है. अभी आपका सीनियर्स ये रिसर्च कंप्लीट किया है, the COVID situation in their villages, the situational analysis, descriptive study. Okay, that is the second type of research, second type of design. Third one is experimental, प्रयोगात्मक. वो क्या है, लैबोरेटरी बेस. ये आपको करना नहीं है, ये ज्यादातर साइंस में होता है. फोर्थ वन इज इवैल्यूएटिव, इम्पैक्ट असेसमेंट, तपस्ली. क्या बोलते हैं, कोई भी स्कीम, योजना, अभी वैक्सीनेशन चल रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वैक्सीन लिया वालों को कोविड आते हैं क्या. दैट कैन बी ए इवैल्यूएटिव रिसर्च. ये सोशल वर्कर्स करते हैं. कोई भी योजना, प्रोग्राम, सोशल वर्क, आपका भी सोशल वर्क इंटरवेंशन को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट. फिफ्थ वन इज केस स्टडी. केस स्टडी इज क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन. केस, एक पर्टिकुलर केस, वैयक्तिक अभ्यास. It need not be a single person. It can be a group of people. अगर एक महिला बचत गढ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे गांव में, उन्होंने एक होटल शुरू कर दिया, एक कोविड सिचुएशन में उसने कम्युनिटी किचन शुरू कर दिया, वो मास्क बनाना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया. गांव में सबको जानता है, समृद्धि, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गढ़, बहुत सारे काम करते हैं. फिर आपको उसके ऊपर डीपली स्टडी करना चाहते हो, ये महिला बचत गढ़ कैसे शुरू किया, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उन्होंने क्या क्या काम कर रहे हैं. सो दिस ए डिटेल स्टडी ऑफ ए महिला बचत गढ़ कैन बी केस स्टडी. उसको केस स्टडी बोल सकते हैं. अगर आप हिवरे बचा, रालीगंज से एक गांव का सूक्ष्म अभ्यास करते, यू वांट टू स्टडी इन डिटेल, ये गांव कैसे आदर्श बन गया है, that can be case study. Case study need not be individual. Case study can be an institution. It can be a group of people. It can be an agency. स्नेहालय अभी नगर सिटी का सबसे बढ़िया संस्था है. ये स्नेहालय कैसे काम शुरू किया है, उनका काम क्या है, उसमें क्या उसका स्पेशल डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, वो स्टडी कर, उसको केस स्टडी बोल सकते हैं. Case study is studying about some outstanding performance, studying about something very distinct, something very different, something very ideal, something very model, something very effective, something we can learn a lot. उसको बोलते हैं केस स्टडी. उसके लिए सर्वे डिजाइन वगैरह नहीं चलते हैं, वहां आपको जाकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लोगों को इन डेप्थ इंटरव्यू करना पड़ेगा. So it is case study, it is गुणात्मक स्टडी है, बोलते क्वालिटेटिव. That is one design.
Sixth one is participatory research, सहभागीय संशोधन. पार्टिसिपेटरी रिसर्च आपको पता होगा, पार्टिसिपेटरी मेथड्स अभी आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आप शुरू किया है, बहुत सारे पार्टिसिपेटरी मेथड्स आप यूज करने वाला है. मतलब मैपिंग होगा, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रांसेक्ट वॉकिंग, गांव में जाकर आप गांव का नक्शा लोगों के साथ, सोशल मैपिंग बीएसडी लोगों ने किया होगा, उनको पता है पार्टिसिपेटरी मेथड्स का है. पीआरए, माइक्रो प्लानिंग, पीआरए, बहुत सारे मेथड्स है. वैसे पार्टिसिपेटरी मेथड्स यूज करके जो रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी. इधर आपको सर्वे करने की जरूरत नहीं, आपको वहां गांव का नक्शा बना सकते हैं, वहां लोगों के साथ ट्रांसेक्ट, सीजनल मैपिंग, डायग्राम वगैरह लोगों के साथ बनाते हैं. ये लोगों को सभी को फायदा होता है. Everybody will be benefited from this research. Okay, the people do the research for their benefit, वो विकास आर्कड़ा बनाने के लिए. Now, last one is action research. Action research क्या है? देखो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. नर्मदा बचाओ आंदोलन मेथा पटकर, शी वॉज ए एमफिल स्टूडेंट, रिसर्च का स्टूडेंट थे 30 का. उन्होंने रिसर्च के लिए वहां गया और वहां का समस्या उनको देखकर उस बहुत she became very sensitive, she wanted to act, she wanted to organize those people. बहुत बड़ा सोशल एक्शन मूवमेंट शुरू कर दिया. वो एक्शन रिसर्च बोलते हैं. रिसर्च लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों को कॉन्शियंटाइजेशन हम बोलते हैं. And people take action to solve their problem. This is really a social work research. लोगों के साथ आप लोगों को पहले डेटा कलेक्शन करेंगे, सिचुएशन क्या है, समस्या क्या है, इसके बारे में लोगों को बताएंगे, फिर लोगों ने उसके ऊपर एक्शन लेने वाला है. So these are the 7 different type of social work research design. Okay. So this is very important question for you for your examination, different types of research design. Now the next topic is sources of data. Sources and types of data. Now sources कहाँ से मिलते हैं? Source कहाँ से data मिलते हैं? Types, different types of data. Now there are primary and secondary sources of data and primary and secondary type of data. Source and type में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ओके, इसलिए दोनों एक साथ दिया है, प्राथमिक और द्वितीय, सेकेंडरी. प्राइमरी का मतलब है आप लोगों से डायरेक्टली लेते हैं डेटा, माहिती गोला करते हैं, डायरेक्टली यू ऑब्जर्व, आस्क पीपल एंड कलेक्ट द डेटा. That is the primary data. Secondary data लोगों से नहीं लेते हैं, किताब से लेते हैं, इंटरनेट से लेते हैं, न्यूज़पेपर से लेते हैं, किसी ने लिखकर पब्लिश किया, पब्लिश्ड डेटा. That is secondary source and secondary type. Is that clear? दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा. ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, मतलब सच, जो क्वांटिटेटिव डाटा जो बोलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा. एज, एजुकेशन स्टेटस, इनकम स्टेटस, ये सब ऑब्जेक्टिव डाटा है. ज्यादातर क्वांटिटेटिव डाटा. सब्जेक्टिव पर्सनल डाटा, ओपिनियन, पर्सनल प्रॉब्लम, आपको क्या क्या समस्या है, वो साइकोलॉजिकल होता है, पर्सनल होता है. उसके लिए केस स्टडी यूज करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज करते हैं सब्जेक्टिव डाटा के लिए. ऑब्जेक्टिव के लिए क्लोज्ड क्वेश्चन यूज कर सकते हैं. उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल डाटा ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है. ओके, सी इफ यू, आई होप आई एम स्पीकिंग वेरी स्लो एंड आई एम स्पीकिंग सिंपल थिंग, यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर आपको किसी का कोई डाउट आ रहे तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, then I can go back to the topic. Okay, otherwise very simple topic. So objective and subjective, how told you. Qualitative and quantitative.
वेरी सिमिलर टू ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो डेटा होता है ना, उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, नंबर का रूप में आपको माहिती मिलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव डेटा, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। आपके पास कितना टीवी है, कितना साइकिल है, आपके घर में कितना लोग है, आपको कितना जमीन है, आपकी इनकम क्या है, इसका जो डेटा होता है ना, वो सब क्वांटिटेटिव डेटा होता है, संख्यात्मक। क्वालिटेटिव क्या होता है, आपको कैसे लगा, ये प्रोग्राम को कितना अच्छा लगा, मेरा क्लास आपको कैसे लगते हैं, बोरिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है। जो बोरिंग, इंटरेस्टिंग, ये सब क्वालिटेटिव डेटा, उसका नंबर से कोई मतलब नहीं है, उसमें क्वालिटी होता है। आप एक व्यक्ति से बात करते हैं, अरे वो सच बोलता है क्या, मुझे लगता है ये थोड़ा सा झूठ बोलने वाला, उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एटीट्यूड्स, ये सब क्वालिटेटिव डेटा होता है। इमोशनल बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्वालिटेटिव डेटा होता है। उसको क्वांटिटेटिव करने के लिए कुछ तरीका है, कुछ टेक्निक से, वो साइकोलॉजिकल स्केल से कल हम डिस्कस किया है। कुछ स्केल्स हम यूज करते हैं एंजाइटी जांचने के लिए, वेलबींग जांचने के लिए, वो सब भी क्वालिटेटिव डेटा होता है। लेकिन उसको जांचने के लिए साइकोलॉजिस्ट ऐसे ऐसे टेक्निक बना कर रखा है, लेकिन बेसिकली इट इज ए क्वालिटेटिव डेटा। ओके, वो पर्सनल सब्जेक्टिव डेटा है, उसमें बता नहीं सकते कि कितनी परसेंट ये व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द राइट, वो सवाल नहीं पूछ सकते। एक के लिए बेस्ट होता है, दूसरों के लिए बेस्ट नहीं होता है, मेरे लिए सही होता है, दूसरों के लिए सही नहीं होता है। मेरा इमोशनल एटीट्यूड, मेरा साइकोलॉजिकल भी, मेरा पर्सनल डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा है। So there are qualitative data, there is quantitative data. These are two types of data. So there are qualitative methods, there are quantitative methods. Qualitative methods में केस स्टडी होता है, साइकोलॉजिकल स्केल्स होता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या होता है, क्वेश्चनर, सर्वे मेथड्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। Now, primary data. How to collect primary data? There are 4 methods given here: observation, questionnaire, interview schedule, interview guide. Observation मतलब निरीक्षण, ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चनेयर मतलब जो क्वेश्चन, प्रश्नोत्तरी, कुछ सवाल पूछते, सवाल लिखते हैं एक कागज में, वो आप सर्कुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर मेल में दे सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब आप क्वेश्चनेयर मेल कर सकते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनेयर में क्या डिफरेंस है? इंटरव्यू शेड्यूल भी प्रश्नोत्तरी है, सवाल, बहुत सारे सवाल लिख कर रखा है, लेकिन वो किसी को भेजता नहीं है, वो आप डायरेक्टली पूछना है। इंटरव्यू करने के लिए आपको इंटरव्यू शेड्यूल यूज करते हैं। ओके, इंटरव्यू शेड्यूल में क्वेश्चंस क्या कैसे होगा? फिक्स्ड क्वेश्चन होगा। फिक्स्ड मतलब क्लोज एंडेड, मल्टीपल चॉइस, उसके सिर्फ टिक कर सकते हैं। दूसरा है इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड में क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस, ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। उसका आंसर्स हो ना, पैराग्राफ आंसर्स होगा। इंटरव्यू गाइड और इंटरव्यू शेड्यूल में इतना फर्क है। इंटरव्यू शेड्यूल क्वेश्चनर सेम है, प्रश्नोत्तरी। इंटरव्यू शेड्यूल में भी प्रश्नोत्तरी है, मुलाकात अनुसूची, उसी में आपको सवाल पूछना पड़ेगा। फेस टू फेस आप डेटा कलेक्शन करने के लिए इंटरव्यू शेड्यूल यूज करते हैं, क्वेश्चनर यूज नहीं करते। उस क्वेश्चनर आपको भेज सकते हैं ईमेल, मैंने क्वेश्चन आपको भेज दिया, कल उसको जवाब हमें भेज दीजिए, दैट इज क्वेश्चनर। ओके, इंटरव्यू शेड्यूल मींस यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन फेस टू फेस सिचुएशन। इंटरव्यू गाइड इज आल्सो फेस टू फेस, उसमें क्वेश्चंस क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव टाइप को होगा, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होगा। ओके, नाउ पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग, ये दोनों में क्या फर्क है? पायलट स्टडी जो होता है, रिसर्च शुरू करने से पहले रिसर्च का टॉपिक क्या है वो सेलेक्ट करने के लिए आपको ये स्टडी करना है। आपको गांव में थोड़ा, आपको गांव के बारे में आप स्टडी करते हैं, आप बहुत ऑब्जर्व किया होगा।
आपने पायलट स्टडी करने के बाद रिसर्च का टॉपिक चुनते हैं। रिसर्च का टॉपिक चुनने के पहले जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पायलट स्टडी। इज दैट क्लियर? प्री टेस्टिंग क्या है? प्री टेस्टिंग क्या, उसको मराठी में क्या होता है? प्री टेस्टिंग का मतलब जब जो क्वेश्चनर बनाया है, इंटरव्यू शेड्यूल बनाया है, उसी को ट्रायल देते हैं। एक बार लोगों को जब उसको टेस्ट करते हैं, ये सच मैंने अच्छी तरह बनाया है क्या क्वेश्चनर, मेरा प्रश्नोत्तरी प्रश्नावली, मेरा मुलाकात अनुसूची में कुछ गड़बड़ होगा क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसको सुधारने के लिए प्री टेस्ट करते हैं। प्री टेस्ट इज to standardize a tool for research. Pre-test is to check, to verify, to improve the questionnaire you have prepared for the data collection. The purpose of pre-test is to improvement in the interview schedule. Pilot study, to select a topic, you have to go for pilot. ये दोनों, both things are there in research. Okay. Now the secondary data, sources, types of secondary data, प्रॉब्लम्स इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंडरी डाटा मैंने पहले बताया आपको, न्यूज़पेपर में जो डाटा है, इंटरनेट में जो डाटा है, वेबसाइट में जो डाटा है, व्हाट्सएप में जो डाटा है, फेसबुक में, दैट इज ऑल सेकेंडरी डाटा। किसी ने टाइप करके, किसी ने अपलोड कर दिया, किसी ने स्टडी कर दिया, आपको दे दिया, आपको देखने को मिलता है। आपने खुद जाकर collect नहीं किया। If you have collected directly, that is primary data. If somebody has collected and you have access to the somebody's data, somebody has uploaded, somebody's research. लाइब्रेरी में जितना भी किताब है, पुराना स्टूडेंट्स का रिसर्च है, वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है। जिन्होंने रिसर्च किया उसके लिए प्राइमरी डाटा है। Is that clear the difference between primary and secondary data? Now types of secondary data, they are types of secondary data means it is research, publication, newspaper data, internet publication, government records, annual reports. These are all secondary data. Okay. Problems in the use of secondary data. Secondary data में समस्या क्या है? वो आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है, इसलिए आपको पता नहीं होगा कितना सच होगा। किसी और ने सर्वे किया है, उन्होंने पब्लिश किया है, जाकर पता करना पड़ेगा एक्चुअली उन्होंने जो पब्लिश किया है उनका सच में सही डाटा मिला है कि नहीं। सो देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी इन द सेकेंडरी डाटा। ओके, नाउ थोड़ा सा इन लिटिल मोर डिटेल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स मैंने क्विकली पढ़ लूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हूं। अगर आपको किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन देम इन डिटेल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी मींस फर्स्ट हैंड डाटा, सेकेंडरी मींस पब्लिश्ड डाटा। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव मींस न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा, सब्जेक्टिव मींस क्वालिटेटिव टेक्सचुअल स्ट्रिंग डाटा। वो कंप्यूटर का लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग मींस टेक्स्ट। Methods of primary data, observation, questionnaire, interview schedule, interview guide, pilot study and pre-testing। दोनों में आपको प्राइमरी डाटा मिल जाता है। ऑब्जर्वेशन, नाउ इसको और डिटेल बता रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इज द बेसिक मेथड। ऑब्जर्वेशन का तरीका स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव। क्विकली मैंने बताऊंगा क्योंकि हमें बहुत बड़ा ये स्लाइड है ना, 60 स्लाइड्स है, मुझे 5 लेक्चर के अंदर 3-4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा। लेकिन आप कोई भी सवाल पूछेगा उसको सभी सवाल को मैं जवाब दूंगा। ओके, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है आपके पास एक क्वेश्चनर होता है, प्रश्नावली होता है, एक अनुसूची होता है, उसी के अनुसार आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आपके पास लिखा है, मेरे पास ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चनर तैयार किया है। अगर मैंने होम विजिट करते हैं, क्या ऑब्जर्व करना है? घर का छत कैसा है, पक्का कच्चा बिल्डिंग है क्या, घर में कितने कमरे हैं, बिजली है क्या घर में, टीवी है क्या, ये सब में पूछने की जरूरत नहीं। मैं होम विजिट कर रहा है ना, मैं मुझे जाकर ऑब्जर्व करके मुझे फिल अप कर सकते।
फिलअप करने की फॉर्म स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए एक फॉर्म बनाकर रखा है, उसी के अनुसार उसमें टिक करना है, नंबर डालना है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ क्वेश्चंस नहीं है, आप जो भी है ऑब्जर्व करते हैं फिर लिखते हैं। Yes, people are very cooperative, they are neat and tidy, they speak only truth. These are your unstructured observation. Okay. Then participative and non-participative. पार्टिसिपेटिव में क्या है? आप जाकर देखते हैं, लोगों को पता चलते हैं आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप स्कूल में निरीक्षण कर रहे हैं, बच्चों खेल रहे, आप जाकर प्लेग्राउंड में जाकर बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर लोगों को उनको भी पता चलता है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेटिव मतलब क्या है? सीसीटीवी, अभी मेरा क्लास चल रहा है, इधर सीसीटीवी कैमरा है, वो कैमरा के द्वारा किसी ने मुझे ऑब्जर्व करता होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्व करता होगा। आप मोबाइल कैमरा रखा है विंडो से, आप सामने नहीं आ रहे, बच्चों खेल रहे, क्योंकि आपको पता होता है अगर आपको बच्चे लोग देख लिया तो उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका खेलने का तरीका चेंज होता है, इसलिए आपने सीक्रेटली को ऑब्जर्व करते हैं। जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया होगा प्लेग्राउंड में, उसी से आप ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज नॉन पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। दोनों तरीके से आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, I think it is clear what is participative, what is non-participative, what is structured, what is unstructured. Questionnaire, बहुत सारे टाइम आप क्वेश्चनर यूज करते हो, मैंने आपको बताया, आपको पोस्ट भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डाइकोटोमस मतलब दो ही आंसर होता है, यस और नो, ऐसा क्वेश्चन को बोलते हैं डाइकोटोमस। फिक्स्ड आंसर होता है यस और नो। ओपन एंड क्लोज, ओपन मतलब उसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं, बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। क्लोज एंडेड आपको आंसर नहीं लिख सकते, उसमें कुछ ऑप्शन दिया होगा, उसको टिक करना है। क्लोज्ड एंड। कंटिंजेंसी क्वेश्चन, कंटिंजेंसी मींस एक सवाल पूछा, उसी में डिपेंडेंट दूसरा सवाल, मतलब बोलते हैं आर यू मैरिड, यस और नो, इफ यस हैव यू गॉट चिल्ड्रन। ये देखो, इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी क्वेश्चन। यस और नो सवाल पूछा पहले, अगर यस है तो दूसरा सवाल पूछेंगे, नो तो दूसरा सवाल पूछना नहीं, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट क्वेश्चन। मैट्रिक्स क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। मैट्रिक्स मींस टेबल, टेबल में अगर फैमिली की इंफॉर्मेशन पूछना है, फैमिली चार्ट, एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे फर्स्ट वन फैमिली मेंबर 1, उसका एज, उसका एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन। मेंबर 2 फादर, उसका एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। एक ही टेबल में बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। टेबल का रूप में सारणी बनाकर पूछना सवाल, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। एक छोटा सा टेबल से आपको 10-15 सवाल इकट्ठा एक टेबल के अंदर आपको शामिल कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस मतलब अगर आप पूछते हैं व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। उसमें लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टिक करेंगे, अगर ग्रेजुएट है ग्रेजुएट, लेटेस्ट पूछ रहे। सेम सवाल मल्टीपल रेस्पॉन्स में पूछ सकते हैं। व्हाट आर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, अगर उसमें लिखा होगा बीए, वो भी टिक करेंगे, एमए, वो भी टिक करेंगे, बीएड, वो भी टिक करेंगे। यू कैन चूज मोर देन वन आंसर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रेस्पॉन्स। समझ में आ गया? मल्टीपल चॉइस में यू कैन चूज ओनली वन, मल्टीपल रेस्पॉन्स में सेवरल ऑप्शन, यू कैन चूज मोर देन वन ऑप्शन। फैक्चुअल और ओपिनियन टाइप, दो तरीका से क्वेश्चन होता है। फैक्ट मतलब एक्चुअली कितना, नंबर, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, कुछ को बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। ओपिनियन मींस क्वालिटेटिव, एटीट्यूड बेस्ड। ओके, आपका राय क्या है, दैट इज दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पीपल यूज। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, डाइकोटोमस, यस और नो, क्लोज्ड एंडेड, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। कंटिजेंसी, डू यू हैव सेल फोन, इफ यस
हाउ फ्रीक्वेंटली यूज, यस और नो के साथ में मैट्रिक्स, ये टेबल बनाया है, इसमें आपको टिक करना है। मल्टीपल चॉइस, देखो यू कैन more than one answer you can choose. You can choose only one multiple choice. Okay, which one of the following is the reason for continuing the present job? Nature of the job, duration of work, wages, salary. Multiple response, you can choose more than one. Why do you work? Maybe for income, for in satisfaction, so etc. etc. Factual question, what is your age, opinion, what you think about it. Sequence, क्वेश्चनर बनाते हो कौन सा सीक्वेंस में बनाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछना है, लास्ट में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछना। लॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। सेक्शंस 1 2 3, इकोनॉमिक डेटा, पॉलिटिकल डेटा, कल्चरल डेटा, सब सेक्शन। इकोनॉमिक के अंदर पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, मंथली इनकम, सो सेक्शन। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चनर बनाते समय आपको ये सब ध्यान में रखना है। कौन सा क्वेश्चन आपको अवॉइड करना है, ऐसा सवाल पूछना नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन, आर यू सैटिस्फाइड विथ योर जॉब? कोई नहीं बोलेंगे आई एम नॉट सैटिस्फाइड, सभी बोलेंगे आई एम सैटिस्फाइड विथ माय जॉब। वो डरता होगा, अगर मैंने नॉट सैटिस्फाइड बता दिया तो अगर एम्प्लॉयर को पता हो जाए तो मुझे फायर करेंगे। सो लीडिंग क्वेश्चन ऐसा नहीं। आर यू ऑनेस्ट, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है, बिकॉज एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट। उस दूसरा तरीका से आपको लीडिंग क्वेश्चन आपको नहीं पूछ, थ्रेटनिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्वेश्चंस दैट इंक्वायर्स अबाउट द रिस्पोंडेंट्स गैम्बलिंग हैबिट्स, डू यू स्मोक, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछना नहीं चाहिए। अल्कोहलिक्स के बारे में, ड्रिंकिंग हैबिट, चाइल्ड अब्यूज, आर यू चाइल्ड अब्यूजर, आर यू ए क्रिमिनल, सो ऐसा सवाल नहीं पूछता है। दिस इज थ्रेटनिंग, अगर मैंने लिखा तो मुझे तो अरेस्ट भी हो जाएगा। So don't ask such kind of threatening questions. Double barrel question. Double barrel question क्या है? ये एग्जाम्पल दिया है। Women should stay at home and take care of their children and other family members and stop taking up employment outside. Do you agree? अगर ऐसे सवाल पूछते हैं, महिला क्या करना चाहिए? घर में बैठना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, पापा को, मम्मी को, पेरेंट्स को, फैमिली को, सभी को केयर देना चाहिए, एंड बाहर काम के लिए नहीं जाना चाहिए। डू यू एग्री? अगर आप बता रहे हैं यस आई एग्री, उसका मतलब क्या है? डोंट गो फॉर जॉब आउटसाइड। नो आई डोंट एग्री, उसका मतलब क्या है? वो यू डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। देखो डबल क्वेश्चन पूछा है। अगर एस बता दिया तो एक तरीका से उसका नुकसान होता है, नो बता दिया तो दूसरा तरीके से उसका नुकसान होता है। ऐसा सवाल नहीं पूछना है। ओके, ट्रिकी क्वेश्चंस, आंसर टू बी अवॉइड, ऐसा आंसर भी नहीं लिखना है। नो रिस्पॉन्स, डोंट नो, इंडिफरेंट, अनडिसाइड, ऐसा जवाब भी नहीं। इंस्ट्रक्शन, नोट ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सप्लेन द कोडिंग यूज, एक्सपेंड द अब्रिविएशन। एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कोई भी सवाल क्वेश्चनर के सामने। ये जो जवाब आप देगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। उसमें अगर नंबर कुछ यूज किया तो उसको एक्सप्लेन कर लीजिए। कल हम एक्सप्लेन किया था साइकोलॉजी स्केल में, एक्सपेंड द अब्रिविएशन, अगर कुछ अब्रिविएशन से तो उसको एक्सप्लेन कर लीजिए। इंटरव्यू शेड्यूल एंड इंटरव्यू गाइड में क्या डिफरेंस है? शेड्यूल क्वेश्चनर है, गाइड में ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, ग्रुप फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये भी इंटरव्यू गाइड है, ग्रुप के साथ आपको डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। ओके, पहली स्टडी मैंने आपको बता दिया, प्री टेस्ट प्लान भी बता दिया। सेकेंडरी डाटा कहां से मिलता है? सेकेंडरी डाटा पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, जर्नल, बुक, पीरियोडिकल, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, लिटरेचर, बुक रिव्यू, वेब रिसोर्स, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेस है। प्रॉब्लम्स, कभी कभी you don't get the real data, appropriate data, reliability, authenticity, sometimes outdated, बहुत पुराना डाटा मिलता है। अभी देखो सेंसस डाटा 2011 का है, अभी 2021 हो गया है, नेक्स्ट सेंसस, लेकिन अभी वही रिलायबल डाटा अवेलेबल है, 10 साल पुराना। कॉपीराइट एंड प्लेजियरिज्म, कभी कभी आप दूसरों को डाटा यूज करते हैं ना, उसको प्लेजियरिज्म बोलते हैं, कॉपीराइट इश्यू हो जाता है। मिसलीडिंग एनालिसिस, कभी कभी प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता है। नाउ दिस टॉपिक आई विल टेक टुमारो, सैम्पलिंग कल के लिए टॉपिक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, हाउ टू कलेक्ट द डेटा। सो लास्ट वर्ड अबाउट ग्रुप, फोकस ग्रुप डिस्कशन।
This is also one of the method of collecting primary data. फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या है? अगर आप एक व्यक्ति को पूछते हैं आपको कितना जमीन है, आपका घर में कितना व्यक्ति है, आपका घर में घर का सिचुएशन क्या है, अगर एक सेल्फ ग्रुप है 5-10 लोग, उनको आप डायरेक्टली पूछते हैं आपका घर कैसे है, कभी कभी ग्रुप में आपको मोर रिलायबल डाटा मिलता है, क्योंकि आप एक ग्रुप के साथ हैं, आप ग्रुप को बोलते हैं आपका समस्या क्या क्या है, गांव का समस्या क्या क्या है। ग्रुप में लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अगर व्यक्ति को बोलते हैं आपको गांव में क्या क्या समस्या है, वो बहुत सारे समस्या बोलेंगे, उनको पता है मेरे साथ कोई नहीं है, मैं जो बोलते सच है क्या झूठ है। इसलिए आप कुछ सवाल आप ग्रुप में कलेक्ट करना चाहिए। गांव का समस्या ढूंढने के लिए ग्रुप में आप लोगों को मिलो, ग्रुप में सवाल पूछो, दैट इज ग्रुप इंटरव्यू और फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस में आप क्वेश्चनर तैयार करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन गाइड, FGD गाइड। सेम है, इंटरव्यू शेड्यूल जैसा है, लेकिन ग्रुप में सवाल पूछने के लिए आपने बना कर रखा है। वो ग्रुप मतलब कम से कम 3 लोग, 5 लोग, मैक्सिमम 10 लोग, 10 से ज्यादा ग्रुप में नहीं होना चाहिए, फिर फोकस नहीं हो सकते, फोकस अलग जाता है। So this much about today's lecture. If you have any question, you can ask me. I am looking at this chat box. I did not find any questions there. Either you have understood all my explanation, otherwise you have not understood. Research में primary और secondary दोनों ही data use होता है क्या? Very good, Angida. Good question. दोनों use करना है। Research में दोनों चाहिए। सेकेंडरी डेटा कब यूज करते हैं? इंट्रोडक्टरी चैप्टर बनाने के लिए। ये समस्या क्यों चुन लिया है, ये समस्या, ये सब आप पूछते हैं ना, रेलेवेंस क्या है, और उसका कुछ डेटा आपको चाहिए। गांव में कितना लोगों को कोविड में अफेक्ट है, आपको पर्सनली कलेक्ट नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, नेट में आया है। सो सेकेंडरी डेटा आपको यूज करना कंपल्सरी है। ओके, सो प्राइमरी डेटा एनीवे यू हैव टू यूज, सेकेंडरी डेटा भी आपको यूज करना। अंकिता, दैट इज योर आंसर। Yes. Any other questions? Thank you for Angita. At least one question आया है. I am glad to see your questions. Okay. 2 minutes है, last 2 minutes. Any questions? Please ask. Otherwise, I will conclude here.